నిజామాబాద్ ప్రజలందరికీ పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తాము. బిలీటెడ్ అయినా కూడా దీపావళి శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తాము. ఒక సామెత ఉన్నది, 1000 ఏకలు చంపిన పిల్లట కాశీ యాత్రకు వెళ్ళారు. నిన్న మొన్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకులందరూ కూడా గల్ఫ్ యాత్రకు పోయింది. తెలంగాణ ఉద్యమ సందర్భంలో మొత్తం తెలంగాణ ప్రజలందరం కూడా కళ్ళకి ఏడ్చి బాధపడ్డటువంటి అంశాలు ఏంటంటే, తెలంగాణ పల్లెల్లో కరువు తాండవిస్తుంది, ఎక్కడ చుక్క నీరు దిక్కులేదు, భూమి ఉన్నవాడైనా లేనివాడైనా, కుల వృత్తులు ఉన్న వాళ్ళైనా లేని వాళ్ళైనా అందరం కూడా ఉన్న ఊరును, కన్న తల్లిని, కుటుంబాన్ని, పండుగల్ని, పబ్బాల్ని, సంతోషాల్ని అన్నింటినీ ఇక్కడ విడిచిపెట్టి విదేశాల బాట పట్టాల్సి వచ్చింది. దుబాయ్, బొంబాయి, బొగ్గుబాయ్ అని చెప్పి తెలంగాణ ఉద్యమ సందర్భంలో మనందరం కూడా బాధపడినటువంటి విషయం. 67 ఏళ్ళ పరిపాలనలో 50 ఏళ్ళు కాంగ్రెస్, 17 ఏళ్ళు టీడీపీ పరిపాలిస్తే ఈ రాష్ట్రాన్ని, తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని మనకు మిగిలింది ఏంటంటే బొంబాయి, దుబాయ్, బొగ్గుబాయ్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. గల్ఫ్కు తెలంగాణ బిడ్డలు వలస వెళ్ళడానికి ప్రధాన కారణమే కాంగ్రెస్ పార్టీ. మరి అటువంటి పార్టీ ఇవాళ గల్ఫ్కు పోయి మొసలి కన్నీళ్లు గాలుస్తూ మేమేదో మీకు చేస్తామని చెప్పేటటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. 50 ఏళ్ళ వాళ్ళ పాలనలో గల్ఫ్ బాట పడినటువంటి కార్మికులకు ఏమీ కూడా చేయలేదు. ఏమీ చేయకపోగా వారి యొక్క కష్టాన్ని పరిహాసం చేసే విధంగా 2006వ సంవత్సరంలో ఒక డిపార్ట్మెంట్ పెడుతున్నాము, ఎన్ఆర్ఐసీలు గల్ఫ్ వెల్ఫేర్ అని చెప్పి పెట్టింది. 2006వ సంవత్సరంలో పెట్టినటువంటి ఆ డిపార్ట్మెంటు 2006 నుంచి 2011 వరకు 5 సంవత్సరాలు ఒక్క నయా పైసా బడ్జెట్ లేకుండా దాన్ని పెట్టడం జరిగింది. అంటే ఎట్లా మభ్యపెట్టారు తెలంగాణ ప్రజల్ని, ఎట్లా మోసం చేశారు ప్రజల్ని అని కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పడానికి అదొక అద్భుతమైనటువంటి సాక్ష్యం. 2006 నుంచి 2011కు నయా పైసా ఇవ్వకుండా ఎన్ఆర్ఐసీలు నడిపినటువంటి ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీ. మరి ఆ ఘనత గల కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కావచ్చు, నిన్న యాత్రకు పోయినటువంటి మధు యాష్కి గారు కావచ్చు, జగిత్యాల జీవన్ రెడ్డి గారు కావచ్చు, నిన్నగాక మొన్న వచ్చిన కుంతియా గారు కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా అందులో భాగస్వామ్యం. కేవలం రాష్ట్రంలోనే కాదు, దేశంలో కూడా ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఉంది. కానీ ఎన్నడూ కూడా మరి దుబాయ్ కానీ గల్ఫ్ దేశాలతో కానీ చిన్న చిన్న దేశాలండి, మేము పార్లమెంట్లో చూసుకుంటే బాధే, చిన్న చిన్న దేశాలు, ఫిలిప్పీన్స్ లాంటి దేశాలు గల్ఫ్ దేశాలతో ఒప్పందం చేసుకొని కనీసం మినిమం వేజ్ ఇవ్వకపోతే మా వాళ్ళని మీ దగ్గర పంపమని చెప్పి యుద్ధం చేస్తాయి వాళ్ళతో. మనం ఇంత పెద్ద దేశం భారతదేశం, యాజ్ ఎ పాలసీ మ్యాటర్ మరి ఇన్ని సంవత్సరాలు ఈ దేశాన్ని పరిపాలించినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నడూ యుద్ధం చేయలేదు. అందుకే ఇక్కడికి వెళ్ళి గల్ఫ్కి వలసిపోయినటువంటి మన కార్మికులు ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళకు మినిమం వేజ్ అన్న దొరకనటువంటి సందర్భాన్ని మనం అనేక సార్లు చూస్తూ ఉంటాం. ఎన్నో రకాల బాధలు, ఒక పక్క కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోదు, ఇంకో పక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోదు. మరి ఇవన్నీ జరుగుతున్నటువంటి సందర్భం ఉద్యమంలో కూడా ఎన్నోసార్లు నిలదీసినాం. మేము గల్ఫ్లో ఎవరైనా చనిపోతే కనీసం బాడీ తెచ్చే పరిస్థితి లేదని బాధపడ్డాం. అటువంటి సందర్భంలో 2006లో మరి వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ పెట్టిండ్రు. 2011 వరకు కనీసం ఒక చిన్న నయా పైసా కూడా గల్ఫ్ బాధితుల కోసం వాళ్ళు ఇవ్వలేదు. ఆ తర్వాత ఇక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎట్లా వచ్చేటట్టుంది, ఉద్యమం ఉధృతమవుతుంది అనుకున్నటువంటి సందర్భంలో 2012 నుంచి మొదలుపెట్టిన బడ్జెట్ ఇవ్వడం అంటే ఆ 2 ఏళ్లలో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి డబ్బులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో గల్ఫ్ వెల్ఫేర్కి ఇచ్చినటువంటి డబ్బులు 6 కోట్ల రూపాయలు. ఒక సంవత్సరం 5 కోట్లు, ఇంకో సంవత్సరం 70 లక్షలు, ఇంకో సంవత్సరం ఇంకేదన్నా, మొత్తం కలిపి 6 కోట్లు వాళ్ళు ఇచ్చింది. మరి 2014 నుండి 2018 వరకు ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి డబ్బులు 106 కోట్లు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను మీకు మనం చేస్తాను. 4 ఏళ్లలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసింది ఏంది, 10 ఏళ్లలో కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసింది ఏందన్నది ఈ యొక్క చిన్న డబ్బులు నిధుల విషయం చూసుకుంటేనే తెలిసిపోయేటటువంటి పరిస్థితి. అంతేకాదు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి తెలంగాణ బిడ్డల పట్ల ప్రేమ ఉంటుంది, ఆర్తి ఉంటుంది. అక్కడ చనిపోయిన ఎవరన్నా అని తెలిస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటబడి ఢిల్లీలో మా ఎంపీలమైనా, ఇక్కడ ఉండేటటువంటి మా మంత్రులైనా, నిరంతరం మన డిప్యూటీ సీఎం గారు మహమూద్ అలీ గారు కూడా సౌదీ అంబాసిడర్తో పలు సందర్భాల్లో కూడా మాట్లాడి హైదరాబాద్లో కూడా మీరు కాన్సులేట్ పెట్టండి అని చెప్పి ఎన్నో సందర్భాల్లో వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి. అయినప్పటికీ ఇంటర్నేషనల్ చట్టాలు, అంతర్జాతీయ చట్టాలు కాబట్టి సులువుగా లేదు, వాటి మీద ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కానీ ఈ 4 ఏళ్లలో
మరి మనము తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత 1278 మంది బిడ్డలు మన వాళ్ళు అక్కడ చనిపోయిన వాళ్ళను ఇంటికి తీసుకొచ్చడే కాదు, ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వాళ్ళ సొంత గ్రామం వరకు ప్రభుత్వ ఖర్చుతో ఉచితంగా అంబులెన్స్ పెట్టి కూడా పంపిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం, మానవతా దృక్పథంతో ఆలోచించేటటువంటి ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం. మరి అంతకుముందు 10 ఏళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు ఉంటే మరి ఎంతమంది బిడ్డలను అక్కడ చనిపోయిన వాళ్ళని ఇక్కడ తీసుకొచ్చారంటే కేవలం వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టుకోవచ్చు. పాపం ఆడ చనిపోయిన వాళ్ళు ఉంటే ఆ కుటుంబాల బాధ వర్ణనాతీతం. కేంద్రం నుండి ఏమైనా వస్తే రావాలే, లేకపోతే లేదు. ఎయిర్పోర్ట్లో వచ్చినటువంటి శవాన్ని కనీసం 3 దాకా తీసుకుపోయే పరిస్థితుల్లో లేనటువంటి సందర్భాలు కూడా మనం ఎన్నోసార్లు చూడడం జరిగింది. మరి ఇంతేకాదు, మరి అక్కడ ఉండేటటువంటి ప్రజలు వివిధ సందర్భాల్లో ఆమ్నెస్టీ ఇచ్చినప్పుడు కానీ, కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు కానీ మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళని ఆదుకున్నటువంటి సందర్భాలు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తాయి. కానీ అదే టీఆర్ఎస్ పార్టీ 2014 నుంచి 18 లోపల మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఇరాక్లో యుద్ధం జరుగుతుంటే 860 మందిని అక్కడి నుండి తీసుకొచ్చినాం. మలేషియాలో ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో 66 మంది కార్మికులు ఉంటే వాళ్ళని తీసుకొచ్చినాం. సూడాన్లో 19 మంది కార్మికులు చిక్కుకుపోయి ఉంటే వాళ్ళని తీసుకొచ్చినాం. అదేవిధంగా గల్ఫ్ కంట్రీస్లో ఇప్పుడు ఏదైతే దుబాయ్లో, అబుదాబిలో, షార్జాలో ఇప్పుడు ఏదైతే అమ్నెస్టీ ప్రకటించిందో దాంట్లో ఇప్పటికే 590 మందిని ప్రభుత్వ ఖర్చులతో మరి మన గౌరవ మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారు, మన నరసింహనాయుడు గారు, ఇతర నాయకులు వెళ్ళి వారి దగ్గరుండి టికెట్లు ఇచ్చి తీసుకొని రావడం జరిగింది. అంతేకాదు ఇంకా 3 నెలల అమ్నెస్టీ ఎక్స్టెండ్ చేసిండ్రు. ఇంకా ఎంతమంది వీలైతే అంతమందిని కూడా తీసుకొని వస్తాం. చివరికంటా కూడా అక్కడ నుండి వచ్చేయాలనుకున్న వాళ్ళందరినీ వాళ్ళ వాళ్ళ గ్రామాలకు చేరుస్తాం. అటువంటి కమిట్మెంటు ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నది. అంతేకాదు, మరి వేరే వేరే దేశాల్లో చనిపోయినటువంటి కార్మికులు ఉంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో మొదలు ₹1,00,000 ఎక్స్గ్రేషియా ఇచ్చేది, తర్వాత ₹1,50,000 అని చెప్పింది. కానీ 2012 నుండి అన్ని ఫైళ్లు పెండింగ్ పెట్టి ₹1 కూడా ఎవరికి ఇవ్వలేదు. ఇవాళ మన ప్రభుత్వం వచ్చినాక కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు పెండింగ్ పెట్టిపోయినటువంటి వారిని అందరినీ కూడా 1100 మందిని మరి ₹2,00,000 ఎక్స్గ్రేషియా ఇస్తూ మనము మన ప్రభుత్వం ఫైల్ అంతా కూడా ప్రాసెస్ చేసింది. త్వరలోనే ఆ డబ్బులు కూడా రిలీజ్ అయ్యేటటువంటి సందర్భాన్ని మీరు గమనించాల్సిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. వాస్తవానికి తెలంగాణ ప్రజల పట్ల, వలసపోయినటువంటి వారందరి పట్ల ఎక్కడో దూరం విషయాలు కాదు. మా నిజామాబాద్ జిల్లాలోనే బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో మీరు చూసుకుంటే భీమ్గల్ అని బాగా కొద్దిగా వెనుకబడినటువంటి ప్రాంతంలాగా కరువు ప్రాంతంగా ఉండేటటువంటి మండలం ఉంటుంది. భీమ్గల్ మండలం నుంచి మస్తు మంది వలసపోయింది. అక్కడ ఎందుకు వలసపోయిందంటే ఒక్క ₹4-5 కోట్ల పెట్టి గట్టుపొడిచిన వాగును రిపేర్ చేసే పరిస్థితి లేక ఎంతో మంది వలసపోయింది. కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఆ డబ్బులు శాంక్షన్ చేసుకున్నాం. ఇవాళ ప్రతి ఎకరాకు కూడా నీళ్ళు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. నిండా నీళ్లుంటే గల్ఫ్కు పోయేటటువంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఎవరికి ఉండదు. మరి ఈ సందర్భంగా మళ్ళా ఒకసారి గల్ఫ్లో ఉన్నటువంటి మన బిడ్డలకు అందరికీ కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. మీతో నిజంగా అండగా దండగా ఉన్నదెవరన్నది మీకు తెలుసు, ఉండబోయేదెవరని కూడా మీకు తెలుసు. కాబట్టి రేపటి సందర్భంలో అవసరం ఉన్నప్పుడు నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు గుండె మీద చేయి వేసుకొని ఆలోచన చేసి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిందిగా గల్ఫ్ కార్మికులందరినీ కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను. మరి కేసీఆర్ గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉద్యమంలో ఉన్నప్పుడు ఈ రాష్ట్రం కనీసం అవతరణ కూడా లేనప్పుడు ఈ ప్రాంతం నుండే ఎక్కువ మంది గల్ఫ్ పోయినని చెప్పి ఎన్నో సందర్భాల్లో కొట్లాడేది. ఇక ముందు కూడా ఎప్పటికైనా మీకు అండగా ఉండేది కేసీఆర్ గారే అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తూ, మరి ఎన్నికల ముందు వచ్చి కల్లబొల్లి మాటలు చెప్పేటటువంటి వారి మాటలు నమ్మవద్దని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. మరి ఇవాళ గౌరవనీయులు మన పెద్దలు डिप्टी सीएम गारू मन जिला को వచ్చినారు. इतने दिनों में 4 सालों में हमारे निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो माइनॉरिटियों के वास्ते डेवलपमेंट हुआ है, 1-2 मिनट मैं आपको बता के आपके जरिए लोगों को, निजामाबाद के हमारे लोगों को एक और बार याद दिला के फिर आपको और ज़्यादा इश्यूज़ पे बोलने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी साहब. हमारे निजामाबाद के पॉपुलेशन जो आवाम है, हैदराबाद के बाद सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी हमारे मुसलमान भाई रहते हैं तो हमारे निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं. इसीलिए केसीआर साहब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेके जो भी माइनॉरिटी स्कीम्स आते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए वो ऑटोमेटिकली निजामाबाद को चूज़ करते रहते हैं. और इसी सिलसिले में उन्होंने एक 17 हमारे पास नए जो मॉडल स्कूल्स हैं उन्होंने दिए हैं. और आपके सपोर्ट से हमने एक 54 प्लेसेस पे, चाहे वो उर्दू घर बनाने का होने दीजिए, शादी खाना बनाने के होने दीजिए, नए नए प्रोग्राम्स हमने एक 11 करोड़ के साथ हमने टेकअप किया है सर. और इसके अलावा जो शादी मुबारक स्कीम है इसमें हमारे निज़ामाबाद के बच्चियों को
तकरीबन एक 10,000 से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिला है साहब, वो भी 59 करोड़ बजट से हमारे अपने सरकार के तरफ से, हुकूमत की तरफ से उनको बेनिफिट मिला है। तो ऐसे मैं बोलते अगर जाऊँगी साहब तो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ का भी जो डेवलपमेंट हुआ है, सिख माइनॉरिटीज़ का भी जो डेवलपमेंट हुआ है, निज़ामाबाद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है साहब आज एक मिसाल बन के तेलंगाना में रह गया है, स्पेशली माइनॉरिटी डेवलपमेंट के वास्ते। और इतने हद तक हम गए कि कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट जब हुआ तो हमने कलेक्टर साहब से अलग से रिक्वेस्ट किया और एक 200 मुस्लिम लड़कों को सेपरेटली सेलेक्ट करके उनका भी ट्रेनिंग हमने करवाया। तो जो भी गवर्नमेंट की नौकरी आती है उसके प्रिपरेशन के वास्ते भी हम हमारे बच्चों को तैयार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं। आपको भी मालूम है जो मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम रहता था साहब, पहले सरकारों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेके वो काम नहीं करवाते थे, लेकिन इस सरकार में हमेशा कलेक्टर के साथ मैं रिव्यू करते रहती हूँ, हमारे एमएलए साहब सारे रिव्यू करते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बजट ऑलमोस्ट एक साल में 34 करोड़ तक का बजट हम एमएसडीपी में भी लेके आके हमारे माइनॉरिटी भाई बहनों के लिए हमने काम किया है। तो इस सिलसिले में अच्छा काम चल रहा है, तरक्की बहुत अच्छे से चल रही है। तो मेरा बस इतना ही गुजारिश है हमारे माइनॉरिटी भाई बहनों से, स्पेशली हमारे मुसलमान भाई बहनों से, आज जब इलेक्शन पास में आ गया है तो चंद बातें हमें सोचना चाहिए वापस 1 मिनट ठहर के। उसमें एक बहुत बड़ी बात है कि तेलंगाना रियासत का जो हमेशा तरक्की रोकने की कोशिश चंद्रबाबू नायडू साहब करते हैं, आज कांग्रेस पार्टी जाके चंद्रबाबू नायडू साहब के साथ दोस्ताना बना लिए हैं। तो आगे चल के किस तरफ से ये हमारे तरक्की को आगे बढ़ने देंगे, किस तरह से हमारे रियासत को आगे बढ़ने देंगे, ये तो बात मेरे समझ के बाहर है। आप सभी लोग एक बार सोचिए, अगर ऐसे जमातों से कांग्रेस पार्टी कल को गठबंधन में चलेगी, साथ लेके चलेगी उनको, तो हमेशा हमारे डेवलपमेंट में अड़चन डालते ही रहेंगे। और ये तो मैं सोचती हूँ कि एक तरीके से ये हमारे रियासत के वास्ते बहुत बड़ा गद्दारी का काम है, क्योंकि हमारे रियासत अलग नहीं होने देने में चंद्रबाबू नायडू साहब का बहुत बड़ा हाथ था। जब रियासत अलग हो गया फिर भी चंद्रबाबू नायडू साहब एक 30 लेटर्स लिखे बीजेपी गवर्नमेंट को कि तेलंगाना के तरक्की रोक दीजिए, तेलंगाना के रैयतों के पानी आने मत दीजिए करके उन्होंने हमेशा अड़चन डाला है। और ऐसे जमात के साथ आज कांग्रेस पार्टी दोस्ताना कर रही है। तो आप एक बार सोचिए कि ऐसे जमात के साथ रहना है जो रियासत के आवाम की तरक्की के लिए हरदम काम करती है, या ऐसे जमात को साथ देना है जो हमारे रियासत के ग्रोथ को, डेवलपमेंट को रोकने के लिए काम करती है। ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ, हमारे डिप्यूटी सीएम साहब हमेशा हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ है, अपने डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी डेवलपमेंट में हमेशा एक स्टेप आगे रहते हैं। चंद बार हमारे ज़िले में आ चुके हैं, यहाँ पर दौरा कर चुके हैं। मैं अभी उनसे गुजारिश करती हूँ कि इस पूरे हमारे निज़ामाबाद के बारे में, स्टेट के बारे में आप चंद बात करें। तमाम मीडिया के भाइयों को मेरा सलाम और नमस्कार, और साथ में तेलंगाना की जनता को और हमारे टीआरएस के कायदीन और वर्कर्स को मैं मीडिया के सामने एक बात बताना चाहता हूं हमारे आवाम को। हिंदुस्तान में अगर कोई सेकुलर पार्टी है तो टीआरएस पार्टी। हिंदुस्तान में जिस तरह तेलंगाना स्टेट के मुसलमान तरक्की कर रहे हैं उसकी मिसाल सारे हिंदुस्तान में ली जा रही है। मेरे पास बहुत से अदर स्टेट के कायदीन आते हैं, ख़ास तौर से कश्मीर से भी आए हैं, वहाँ के स्पीकर साहब आए, वहाँ के एमएलसी आए हैं। मुझसे पूछा गया कि आपकी स्टेट में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, मुझे भी एक लिस्ट चाहिए, क्योंकि हमारे स्टेट की आवाम कह रही है कि तेलंगाना स्टेट में मुसलमानों के साथ जो तरक्की के इक़दाम किए जा रहे हैं वहाँ पर भी की जाए। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, हमने बहुत बार, 1-2 बार नहीं, कई बार 48 साल तक कांग्रेस को जिताते रहे, 17 साल तक तेलुगु देशम को जिताते रहे, मगर हम कभी तरक्की नहीं करे। ना कभी हमारी तालीम पर तवज्जो दी गई, ना हमारी मुलाजिमतों पर, ना अमन पर, ना हमारी तरक्की पर। एक ही वाहिद और मसीहा लीडर है केसीआर साहब है, जो तेलंगाना की जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना हासिल भी किए और तेलंगाना में खुशहाली भी लाए, और उस खुशहाली में मुसलमानों को भी बराबरी का हिस्सा दिया। आज उत्तम कुमार रेड्डी कहते हैं कि तेलंगाना हमने दिया है। मैं हमारे मीडिया के जरिए हमारे भाइयों को बताना चाहता हूँ, तेलंगाना को आंध्रा में मिलाने की जरूरत क्या थी। 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हमारे कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे, जो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने जबरदस्ती बगैर किसी वजह के 56 में तेलंगाना के 3 टुकड़े करते हुए 1 टुकड़ा आंध्र में मिला। उस वक्त कांग्रेस इख्तियार में 1969 में डॉक्टर चिन्नाटी साहब ने
तेलंगाना तहरीक बहुत बड़ी तहरीक चलाई, 370 नौजवान पुलिस की गोलियों में शहीद हुए और इलेक्शन भी हुआ एमपी का। 14 एमपी में 11 एमपी तेलंगाना पार्टी को तेलंगाना की आवाम ने जिताई। उसके बाद भी तेलंगाना नहीं देने वाले तो यही उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। केसीआर साहब 2001 से तहरीक शुरू किए और 2014 तक जब वो 2009 में मरन बैठे 11 दिन में, जबकि उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, मगर तेलंगाना के आवाम का प्रेशर, सबर का पैमाना लबरेज हो चुका था, तशद्दुद फूटने वाला था। उस वक्त तेलंगाना का ऐलान किया गया, मगर तेलंगाना का देने में इतनी देरी की गई जिसमें हमारे सैकड़ों नौजवान सुसाइड कर चुके। तेलंगाना अगर दिया गया है तो सिर्फ हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब की हिम्मत है मिली। हमने 32 पार्टियों से हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना की तारीफ में लेटर ले चुके थे, मजबूर होना पड़ा तेलंगाना देने के लिए। खैर तेलंगाना मिल चुका है, बड़ी खुशी की बात है। और तेलंगाना में टीआरएस पार्टी ने जो रूल किए, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 4 साल 3 महीने में जो काम किया है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। हमारे पास आज जो रेजिडेंशियल स्कीम की बात है, हमारे जो महान महात्मा लीडर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल अदा किया था और वो पहले वजीर तालीम थे। उन्होंने अपने एक लेक्चर में कहा था कि जिस कौम की तालीम खींची जाती है, जबान खींची जाती है, वो ऑटोमेटिक जबान फुजीर होती है। यही किया गया हमारे साथ, मतलब खास तौर से मुसलमानों के साथ यही किया गया। हमारी जबान हमसे खींची गई, हमारा तालीम हमसे खींची गई। हमारे मदरसों का हाल ये था, उस जमाने में साबिका में मदरसों का जाल बिछा हुआ था, पूरे मदरसे बंद किए गए, स्कूल बंद किए गए। और उसके बाद हमारे सीएम साहब ने जब देखा कि तेलंगाना में मुसलमान बहुत तालीम में कमजोर हो चुके हैं, इसलिए वो कोई कंपटीशन में मुलाजिमतें हासिल नहीं कर रहे, बड़े बड़े मतलब आईएएस नहीं बन सक रहे, आईपीएस नहीं बन सके, इसलिए सीएम साहब ने सबसे पहले रेजिडेंशियल स्कूल कायम किया। सारे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में इतने रेजिडेंशियल स्कूल कायम नहीं किए, हमारे स्टेट में 204 रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए। कांग्रेस और तेलुगु देशम का 65 साल के दौर में सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल कायम थे, जिसमें 2000 से भी कम बच्चे पढ़ते थे। आज तेलंगाना के अंदर 50,000 से ज्यादा मुस्लिम लड़के और लड़कियां इन रेजिडेंशियल स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। और सीएम साहब आने वाले 5 साल में मजीद स्कूल में इजाफा करना चाहते हैं, क्योंकि जिस कौम को तालीम दी जाए वही कौम तरक्की कर सकती है। इसलिए मैं आपकी मीडिया के जरिए मैं मुस्लिम भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में कोई लीडर ऐसा नहीं है जो मुसलमानों को दूसरी कौम की तरह तरक्की याफ्ता बनाना चाहते। सीएम साहब, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तेलंगाना का अमन, जिस वक्त हम मूवमेंट शुरू किए उस वक्त हमें 4 चीफ मिनिस्टर को साबिका पड़ा। चंद्रबाबू नायडू साहब थे, वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब थे, रोशिया साहब थे, किरण कुमार रेड्डी साहब। किरण कुमार रेड्डी साहब क्या कहे कि तेलंगाना केसीआर साहब कह रहे हैं तेलंगाना लेने के बाद एक दिन भी अमन और चैन से नहीं रहेंगे। खासतौर से मुसलमानों से कहा कि आपको अमन नहीं मिलेगा, हिंदू मुस्लिम फिसाद बर्पा होगा, हमेशा यहाँ नेकलिज्म रहेगा और पावर भी नहीं मिलेगा आपको। 6 घंटे से ज्यादा पावर देने की शक्ति नहीं है तेलंगाना के अंदर। पावर प्लांट हमारे आंध्रा के अंदर ज्यादा है, तेलंगाना में करंट नहीं दे सकते। आज तेलंगाना में जो अमन और भाईचारगी है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिल सकती। गंगा जमुना तहजीब जिसे कहते हैं ना, कि हमारे पास गंगा बहती है ना जमुना, मगर उसके बावजूद यहाँ तहजीब अगर है तो वही तहजीब है गंगा जमुना तहजीब की। आज तेलंगाना के सारे लोग, चाहे हिंदू भाई हो मुस्लिम हो, प्यार और मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे हैं। हर ईद, जब हैदराबाद में जब भी ईद आती थी, गणेश त्यौहार आते थे, बोनाल आते हैं, तो 15 दिन से लोग टेंशन में आते थे, एक एक महीने का राशन लेके रखते थे। आज हर कोई आगे बढ़कर, दिवाली में मुसलमान भाई आगे जाते हैं, गणेशों में जाते हैं, रमजान में हिंदू भाई आते हैं। इतना प्यार और मोहब्बत जो हमारे सीएम साहब ने पैदा किया, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। मुसलमानों की तरक्की के लिए हमारे पास ओवरसीज स्कॉलरशिप लाई गई। ये ओवरसीज स्कॉलरशिप हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं है, कर्नाटक में कुछ है, बस सबसे ज्यादा मिसाल हमारी स्टेट की ली जाती है। हमारे पास ओवरसीज स्कॉलरशिप में हर साल तकरीबन 250 से 300 बच्चों को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन भेजा जाता है, जो आला तालीम हासिल करने के लिए उन्हें 20 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल दिए जाते हैं। ये स्कीम कहीं पर नहीं है। सीएम साहब यही चाहते हैं कि मुस्लिम कमेटी दूसरी कमेटी की तरह प्यार और मोहब्बत से रहे, अच्छी तरह तरक्की करे। आईएएस आईपीएस भी मुसलमानों में काफी कम है। हमारे पास 31 कलेक्टर है, उसमें सिर्फ एक ही कलेक्टर उमर जलील जो है वो एक मुसलमान है। उसके लिए सीएम साहब हर साल 100 बच्चों को आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो बच्चे भी तालीम हासिल करने के बाद हमारे देश की खिदमत कर सके, हमारी स्टेट की खिदमत कर सके। सीएम साहब ने जो चीज इलेक्शन मैनिफेस्टो में थी, उसके अलावा भी इतने स्कीम लाए, उसकी कोई गिनती नहीं की जाती। खासतौर से शादी मुबारक स्कीम
कांग्रेस के दौर में इज्तिमाई शादी थी। मीडिया के भाई ये नेट पे चेक कर सकते हैं। 2011 का बजट देखिए उनका, 2012 का बजट देखिए, 2013 का सिर्फ 50 लाख रुपए का बजट था। इज्तिमाई शादी करते थे और हर साल में 150-200 शादी पूरे आंध्र प्रदेश में किया जाता था मुसलमानों की। वो भी उसके अंदर फोटो सेशन की तरह दुल्हन को एक तरफ दुल्हन को एक तरफ किया जाता था। 25,000 में 10-15 हजार तो अरेंजमेंट करने वाले खा जाते थे। मामूली किस्म हैदराबाद में जो मट्टी का शेर वहाँ पुराने साड़ियाँ मिलते थे उसको कलप कर दिया जाता था। मामूली किस्म का जुमेरात भर का फर्नीचर दिया जाता था। सीएम साहब ने वो स्कीम लाते हुए मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, जब सीएम साहब वनडे सर्वे करवाए तो उस सर्वे में आया था 40,000 से ज्यादा लड़कियां जिसकी उम्र 35 साल हो चुकी है उनकी शादी नहीं। इसलिए सीएम साहब ने इस शादी मुबारक स्कीम लाते हुए खासतौर से तमाम कौमों के साथ माइनॉरिटीज के लिए 4 साल 3 महीने के अंदर 604 करोड़ रुपए दिए। इसके अंदर मामूली रकम नहीं है, 604 करोड़ रुपए और 1,08,65 लड़कियों की शादी करा चुके हैं। आप बताइए कौन सीएम अपने इस तरह इस स्टेट में मुस्लिम लड़कियों की शादी पर तवज्जो देता है। इसलिए मैं तमाम भाइयों से कहता हूँ और खासतौर से एनआरआई के लिए सीएम साहब ने 2 बार मुझे कहा, मैं खुद दिल्ली जाकर वहाँ के एम्बेसडर से मुलाकात किया और हैदराबाद दावत दिया। हैदराबाद आने पर सीएम साहब भी खुद उनसे मिले। तो यहाँ पर एक काउंसलेट ऑफिस कायम किया जाए और खासतौर से एनआरआई जो वापिस आते हैं उनके लिए 100 करोड़ का बजट रखा गया है और आगे इसके लिए एक अच्छी सी पॉलिसी बनाई जाएगी। जो लोग रिटर्न आते हैं उनको किस तरह रिहेबिलिटेट किया जाए। सीएम साहब ने दुबई के भी जो वजीर खारिजा थे उन्हें जब हैदराबाद में मुलाकात करते हुए दुबई में भी जो सहूलतें पहुंचाने के लिए वहाँ लेबर काफ़ी परेशान है, उनसे कहा कि हमारे तेलंगाना के लोग खासतौर से निजामाबाद के लोग बहुत ज़्यादा आदिलाबाद के लोग हैं, उन लोगों को ये हमेशा सहूलत पहुँचाई जाए और जो मसाइल वहाँ पर उसे हल करने के लिए सीएम साहब ने खासतौर से दुबई के जो वजीर खारिजा थे उनसे गुजारिश की और यहाँ पर भी दुबई का काउंसलेट मैं समझता हूँ बहुत जल्दी शुरू होने वाला है ताकि उन लोगों को राहत मिल सके। ये कांग्रेस जो एक बात कहती है और ये उत्तम कुमार रेड्डी ये वो तो ये लोग काफ़ी हुकूमत कर चुके हैं पर कभी भी हमारी तरक्की के बारे में तेलंगाना की तरक्की के बारे में नहीं सोचे। आज अफसोस और शर्म की बात है कि आज वो चंद्रबाबू नायडू से अलायंस कर रहे हैं जो तेलंगाना पक्के द्रोही है। जब पार्लियामेंट में बिल आया सबसे ज्यादा विरोध करने वाले यही चंद्रबाबू थे, नायडू थे। उन्होंने तेलंगाना तहरीक को और तेलंगाना के डेवलपमेंट के जितने प्रोजेक्ट सीएम साहब ला रहे हैं उसे रोकने के लिए मोदी साहब से बड़ी साजिश और आज हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम टीआरएस पार्टी बीजेपी की तरफ जा रही है। मैं इसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। टीआरएस पार्टी वाहिद सेकुलर पार्टी है, कभी भी वो आने वाले वक्त में भी कभी बीजेपी से नहीं मिलेगी। क्यों कि हमें जरूरत ही नहीं है, हमारे स्टेट में ना बीजेपी का वजूद है। हाँ, चंद्रबाबू नायडू जिस जमाने में 1983 में एनटी रामाराव ने टीडीपी पार्टी बनाई थी उस रोज से लेकर आज से 6 महीने पहले तक हमेशा वो बीजेपी से मिले रहे। हत्ता के 2014 में एक भी टिकट उन्होंने आंध्रा में मुसलमानों के लिए एक टिकट नहीं दिया। आज भी उनके पास एक भी कोई मिनिस्टर एक भी एमएलए नहीं है। और आज तेलंगाना में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने मुझे एक मुस्लिम को एक डिप्टी सीएम बनाते हुए रेवेन्यू का ओहदा दिया गया। मैं यही पूछना चाहता हूँ, पहले की हुकूमत 65 साल तक मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहे। तेलंगाना में फिसादात करने वाले यही लोग होते थे, कांग्रेस वाले। और बाद में फिसाद होने के बाद एक 20 किलो चावल, एक 10 किलो गेहूं, कुछ 1 किलो तेल और 1 किलो शक्कर ऐसा बैग बनाकर लाकर लोगों को तसल्ली दी जाती थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब फिसादात होते थे तो अब क्यों नहीं हुए? किरण कुमार डी साहब ने यही कहा कि तेलंगाना बनेगा तो फिसाद भरा तेलंगाना रहेगा। आज कहाँ गया फिसाद? आज जो प्यार मोहब्बत एकजुटती हमारी जो यूनिटी है आज तेलंगाना स्टेट में है। हर कोई, जब एक बार मैं और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ईटर और राजेंद्र साहब दोनों दिल्ली गए थे, दिल्ली में हम बैठे थे, अदर स्टेट के लोग भी बैठे थे। राजनाथ सिंह साहब अंदर दाखिल हुए तो हम लोगों को मुखातिब होते हुए दूसरे स्टेटों को बोले कि तेलंगाना स्टेट अमन की स्टेट से आए लोग, तेलंगाना स्टेट बहुत तेजी से तरक्की करे। हमारा ग्रोथ हिंदुस्तान में नंबर 1 ग्रोथ है। हमारा अगर आप बजट देखेंगे 2013 और 14 का तो 1,61,000 करोड़ रुपए था, 1,60,000 कोटी बजट में। आज आप हमारा बजट देखिए 1,74,000 करोड़ का है, 1,74,000 कोटी बजट होगी। वो टाइम पर हमारे को हिस्से में 48,000 करोड़ 45,000 करोड़ से बढ़कर नहीं आए। आज हमारे सीएम साहब सिर्फ वेलफेयर पे 50 से 55,000 करोड़ का खर्चा कर रहे हैं। आज हमारी वेलफेयर स्टेट इंडिया में जानी जाती है।
किसानों के लिए हमारे सीएम साहब ने जितना किया है, कोई स्टेट में बजट नहीं है। आज 12,000 करोड़ का बजट किसानों का हमारे स्टेट में इस साल का बजट है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, नाराज भाइयों के भी फैमिलीज को बताना चाहता हूँ, ये उत्तम कुमार रेड्डी कुछ करने वाले नहीं है। ये लोग सिर्फ 1-2 साल नहीं, हम 65 साल इनको वोट देते रहे, कांग्रेस और तेलुगु देशम को। ये कभी भी अमन नहीं दिए, तरक्की नहीं दिए, मुसलमानों के बारे में सोचे नहीं। आज कोई मुसलमानों के बारे में सोचने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है। एक मिसाल देना चाहता हूँ खासतौर से मीडिया के जरिए, बीजेपी का तेलंगाना में कोई वजूद ही नहीं है, ये अफवाहें हैं। एक बार जब अमित शाह साहब नलगुंडा आए थे, उन्होंने कहा अमित शाह हूँ, तो सीएम साहब ने कहा हम भी बादशाह है, आप अमित शाह है तो हम बादशाह है, हम आपका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमारे स्टेट में अमन के लिए कभी उन्हें खत्म नहीं रखने दिया गया। आज उनसे एक ही मिसाल देना चाहता हूँ, वहां पर उनका 1 MP है हैदराबाद में और 5 MLA है बीजेपी के। ये इसलिए फिगर बताना चाहता हूँ कि सब कांग्रेस हम पर झूठे इल्जाम लगा रही है। उनके पास कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई उन्होंने कुछ नहीं किया, हाथ को वोट देते रहे, वो हाथ ही देते रहे हमें, कभी हमारी तरक्की के बारे में नहीं सोचे। अब उनके पास मुसलमानों को, जब बीजेपी के 2 MLA थे वही डराते थे, बीजेपी का डर। आज बीजेपी हुकूमत है तो वही डराते हैं बीजेपी से। अरे आप क्यों नहीं रोके फिसादात, आप क्यों नहीं अमन की तरफ जाने दिए। मैं यही बताना चाहता हूँ, बीजेपी का 1 MP और 5 MLA 2014 के इलेक्शन में तेलंगाना की आवाम ने जीता है, मगर जब आगे उसके बाद कारपोरेशन का इलेक्शन आया हैदराबाद में, लक्ष्मण जैसे बीजेपी के स्टेट के प्रेसिडेंट एक कारपोरेटर नहीं जीत सके तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद के अंदर। आप बताइए। दूसरे रामचंद्र रेड्डी साहब जो खैरताबाद के MLA है, एक कारपोरेटर नहीं जीत सके। उप्पल के MLA और जहाँ 10 कारपोरेटर है वहाँ एक कारपोरेटर नहीं जीत सके। एक कारपोरेटर अंबरपेट के जो MLA किशन रेड्डी साहब के पास एक कारपोरेटर जीते, और गोशा महल के अंदर बेगम बाजार में एक कारपोरेटर जीते। टोटल 5 MLA 1 MP से 2 कारपोरेटर पर आ चुके हैं। आज हमें कहते हैं दोस्ती है दोस्ती। अरे बीजेपी को डराने वाले लोगों को लाने वाले आप ही। बीजेपी हुकूमत कब बनाई है? बाबरी मस्जिद किसने शहीद किया? शहीद होती रही। आज मुसलमानों को बताते हैं हम आपके हमदर्द हैं। आप बताइए तेलंगाना में कितना अमन है? आप भी बोलता हूँ, मीडिया से पूछना चाहता हूँ, आवाम से पूछना चाहता हूँ। बाबरी मस्जिद 1 हफ्ते तक शहीद होते रही। यही PV नरसिम्हा राव साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे कांग्रेस के, तमाशा देखते रहे। और बाद में 92 में इतने फिसादात हुए, सैकड़ों मुसलमान पुलिस की गोलियों में शहीद करने वाले कौन है? यही कांग्रेस हुकूमत है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, मेरे मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में कोई सेक्युलर लीडर है, सेक्युलर पार्टी है तो हमारे केसीआर साहब सेक्युलर लीडर है, और पार्टी है तो TRS पार्टी। हमें कोई वास्ता नहीं है बीजेपी से मिलने की। हमें क्या जरूरत है? हमारी स्टेट के अंदर ना उनका कोई वजूद है, ना वो आगे आ सकते हैं। तो ये हमारा इल्जाम मैं खासतौर से मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ, मीडिया भाइयों के जरिए, कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। 2 MP के वक्त भी डराते रहे, आज भी। आज हमारे लिए अल्लाह ताला ने एक मसीहा लीडर, हमारे कुरान में एक बात का जिक्र है कि जब जिस मुल्क में अवाम की तरक्की चाहते हैं अल्लाह ताला, तो वहाँ एक अच्छा लीडर नसीब फरमाते हैं। उसी तरह हमारे केसीआर साहब को अल्लाह ने हम पर नसीब फरमाया है। वो एक ऐसे सेकुलर लीडर है तो सारे अवाम को एक ही नजर से देखते हैं। लोग बड़े बुजुर्ग कहते थे, निजाम हमेशा हिंदू और मुसलमानों को दुआ कहा करते थे। जब उनके पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वालों ने आकर चंदे की मांग की तो निजाम ने उन्हें 1 महीने के बाद बुलाया। बनारस यूनिवर्सिटी को इन्होंने खुद एक वक्त भिजाया, उनको बुलाकर दोनों को बराबर बराबर का चंदा दिया। ये तेलंगाना की तारीख है, हैदराबाद की तारीख है। वही तारीख हमारे सीएम साहब सारे कौम को एक नजर से देखते हैं, हम सब की तरक्की चाहते हैं। इसलिए ये अफवाहों पर मुझे यकीन है कि कोई मुसलमान, उनको सिर्फ 2-5% वोट नहीं मिल सकते। सुबह मेरे पास कुछ लोग आए थे कल, ये कह रहे थे कि साहब कांग्रेस के इतना बोलने के बाद कोई मुसलमान हमारे पास आ रहा नहीं है। तो आज उनके पास कुछ नहीं है, और कहीं मैं तो बताता हूँ 70-80 सीट पर तो वो जमानत भी नहीं बचा सकते। आज तेलुगु देशम के साथ अलायंस करके वो खुद अपनी खबर खोद चुके हैं। हमें नहीं चाहिए तेलुगु देशम। हमारा कालेश्वर प्रोजेक्ट क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? जबकि कांग्रेस यहाँ पर थी, कांग्रेस महाराष्ट्र में थी, कांग्रेस दिल्ली में थी। उसके बाद भी 65 साल तक कभी भी तेलंगाना के किसानों को पानी देने के लिए न कांग्रेस सोची, न कभी तेलुगु देशम को। अगर किसानों का कोई दोस्त है वो केसीआर साहब है। जब केसीआर साहब ने रैतु बंधु से किसानों को जब 4,000 रुपए ईच एकड़ पर क्रॉप देने की बात की, 2 बार 8,000, तो हमारे देवीगौड़ा साहब जो फार्मर्स के प्राइम मिनिस्टर मशहूर है,
उन्होंने फोन करते हुए हमारे सीएम साहब को मुबारकबाद दी कि मैं भी वो काम नहीं सोचा जो आप सोचे। मैं फोन पर मुबारकबाद दे रहा हूँ, मैं आपके घर आकर मुबारकबाद दूंगा, आप इतना अच्छा काम अपने फार्मर्स के लिए कर। सीएम साहब का जो सपना है 1 करोड़ एकड़ को वेटलैंड बनाना है, क्योंकि ड्राई लैंड में आदमी जी नहीं सकता, रात के पैसे नहीं निकाल सकते। वेटलैंड जब आता है तो किसान खुशहाल बन सकता है। आंध्र के किसान और पंजाब के किसान जिस तरह है, तेलंगाना के किसान भी उसी तरह बनेंगे। और मैं आपके जरिए मुसलमानों से एक बात कहता हूँ, सारे हिंदुस्तान में आज आने वाले 10 साल में अगर सबसे खुशहाल मुसलमान रहेंगे तो तेलंगाना स्टेट के रहेंगे, सबसे तालीम याफ्ता मुसलमान रहेंगे तेलंगाना स्टेट के रहेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, ये सेकुलरिज्म का नारा सिर्फ केसीआर ही साहब दे सकते, कांग्रेस कभी सेकुलरिज्म का नारा नहीं दे सकते। सेकुलरिज्म को बर्बाद करने वाली पार्टी है, सेकुलरिज्म को तबाह करने वाली पार्टी है, यही कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को बीजेपी से डरा के वोट लिया, ना कि मुसलमानों को तरक्की देने के लिए वोट लिया। हमेशा वो बीजेपी से डराते रहे। इसलिए मैं तमाम भाई से कहता हूँ, एनआरआई की बात आज दुबई में जाकर उत्तम कुमार रेड्डी कहते हैं, शर्म की बात है। अभी हमारी कविता मैडम जो हरदिल अजीज है निजामाबाद, फिगर बता चुकी है, 5 सालों में 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख तक दिए, और हमारे सीएम साहब ने 100 करोड़ रुपए रखे एक ही वक्त के अंदर। और हमेशा जब भी जरूरत पड़ेगी एनआरएस की मुकम्मल सपोर्ट की जाएगी। एनआरएस के बच्चों के लिए हर किस्म के फैसिलिटीज की जरूरत है, जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। आजकल गल्फ के हालात भी ठीक नहीं है, लोग वापिस आ रहे हैं। इसलिए मैं तमाम एनआरआई की फैमिली से ये अपील करता हूँ, एक ही पार्टी है टीआरएस पार्टी, जो आपके भविष्य के बारे में सोच सकती है, आपके बच्चों के तरक्की के बारे में सोच सकती है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हमेशा ऐसी पार्टी को चुने। ऑलरेडी आपके पास है पार्टी, आपको चुनने की जरूरत है। आज हमें हाथ की जरूरत नहीं है, हम 65 साल हाथ को देते रहे और हमें 48 साल तक हाथ को देते रहे, हाथ हमेशा हमें हाथ दे चुका है। उसके बाद आई नंबर साइकिल की, साइकिल को भी वोट डाले, वो साइकिल पंक्चर भी हो गई, हैंडल भी गया उसका, पैंडल भी चलेगा। और अब साइकिल की तरक्की चलने वाली नहीं है, अभी चलने वाली तरक्की है तो कार की है। तो कार की जरूरत है हमें, और कार में ही तरक्की कर सकते हैं, उसकी स्पीड से तरक्की की जरूरत है। आज जमाना बहुत एडवांस हो चुका है, और अल्लाह के फजल करम से हमारे सीएम साहब जो काम कर रहे हैं उसकी मिसाल कहीं पर भी। आज गल्फ में मैं गया हूँ, एक ने उत्तम कुमार रेड्डी साहब क्या चाहते हैं, मैं गया हूँ, लोग मेरा जिंदगी में इतना इस्तेमाल किए। जब सऊदी में गया तो रेड कारपेट डालकर इस्तेमाल किया गया। क्यों? लोगों ने अनाउंस किया कि तेलंगाना में जो स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है अमन की स्टेट से आए, उसमें हिंदू भाई भी शरीक थे, मुस्लिम भाई भी शरीक थे। जितने ऑर्गेनाइजेशन 17 ऑर्गेनाइजेशन काम करते थे, पहली मर्तबा 17 के 17 एक जगह जमा हुए थे। यही कह रहे थे कि आज हम लोग बहुत खुश हैं। हम जब हैदराबाद में रहते थे क्या होता था मैं बताता हूँ, हिंदुस्तान की जिगर पुलिस महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, गुजरात से पुलिस आकर हैदराबाद में लोगों को पकड़ कर ले आती थी। आज कहाँ गया? क्यों? मौलाना नसीरुद्दीन साहब को हैदराबाद में अरेस्ट कर गोली मारी गई कांग्रेस के दौर में, और यहाँ से अरेस्ट कर ले आकर 7 साल की सजा देने के बाद बाइज्जत बरी करके भेजा गया। तो मैं पूछता हूँ, लोगों का कहाँ है तेलंगाना में फिसादात? क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं कंट्रोल कर सके? इसलिए ये लोगों के हाथ में अगर हुकूमत आएगी, अगर तेलंगाना गाएगा तो बर्बाद हो जाएगा तेलंगाना। ये तेलंगाना को डेवलप नहीं करना चाहते। खासतौर से चंद्रबाबू नायडू बैकडोर से गुजरे, पहले रेवंत रेड्डी को शामिल किया गया कांग्रेस के अंदर, उसके बाद खुद घुसते हुए पावर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना के असल उनका एक ही मकसद है, तेलंगाना के इरिगेशन प्रोजेक्ट को रोकना। चंद्रबाबू नायडू जो आ रहे हैं तेलंगाना स्टेट के अंदर, उनका जो मकसद है कि तेलंगाना के किसान कभी खुशहाल नहीं बनना है। तेलंगाना के किसान के वो नंबर 1 के दुश्मन है। उन्होंने ही बशीरबाग के अंदर फायरिंग करवाई थी, 10 किसान खुद फायरिंग में शहीद हो चुके थे। ये चंद्रबाबू नायडू है। चंद्रबाबू नायडू यही चाहते हैं कि तेलंगाना खुशहाल ना बने, हमसे बैकवर्ड रहे। लोग कह रहे हैं कि आज आंध्र से हम नहीं, हमारे सटलर भाई जो आंध्र के भाई है, कह रहे हैं कि तेलंगाना स्टेट आंध्र से बहुत तेजी से तरक्की कर रही है, बहुत आगे बढ़ रही है। उसे रोकने के लिए बैकडोर से कांग्रेस का सहारा लेकर चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं। हमें नहीं चाहिए चंद्रबाबू नायडू, हमें नहीं चाहिए राजमंत्री की सियासत, हमें नहीं चाहिए दिल्ली की सियासत। हमें चाहिए हमारा लीडर, हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारी गली का हो, हमारे तेलंगाना का हो। और आज हमारे चीफ मिनिस्टर जिस तरह काम कर रहे हैं, मुझे आज से 10 दिन पहले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर मिले हैदराबाद में। उन्होंने एक बात कही, मैं गुजरात की तकरीर में कहा, क्योंकि उनका बॉर्डर उनसे भी कुछ मिलता है। उन्होंने कहा कि सारे हिंदुस्तान में ये बीजेपी का चीफ मिनिस्टर कह रहा है, सारे हिंदुस्तान में, और महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर मुझसे कह रहा है कि सारे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर
जहीर चीफ मिनिस्टर, आवाम की खिदमत करने वाला, आवाम की भलाई सोचने वाला चीफ मिनिस्टर है तो केसीआर साहब है। मैं आपसे नहीं, गुजरात की पब्लिक के सामने, लीडर्स के सामने तकरीर कर रहा हूँ। तो मैं यही कहता हूँ, जब बाहर के लोग हमारे सीएम साहब की इतनी इज्जत करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं, तो हमें इन लोगों की, जो तेलंगाना के गद्दार है, उनकी क्या जरूरत है? ये बाबू चंद्रबाबू नायडू या कांग्रेस हो, ये कभी भी कांग्रेस के दौर में तेलंगाना तरक्की नहीं कर सका। तेलंगाना के साथ मुकम्मल नाइंसाफी करने वाले पार्टियां हैं तो कांग्रेस है, और उससे बढ़ के कोई द्रोही पार्टी है वो तेलुगु देशम पार्टी है। हमें उन पार्टियों की जरूरत नहीं है। खासतौर से मैं मीडिया के जरिए मैं सारे तेलंगाना के, मुस्लिम नहीं, मेरे हिंदू भाई बहन जितने तेलंगाना वादी है, मुझसे तो खासतौर से महाराष्ट्र के लोग हमारे हैदराबाद में बहुत आकर बच चुके हैं, गुजरात के लोग, यूपी के लोग बहुत आकर बच चुके हैं। वो कहते हैं कि हम इतना अमन नहीं देखे। एक बार मैं टीवी में आपको खुला बताना चाहता हूँ, 5 रुपए की स्कीम पर एक यूपी का आदमी खाना खाते हुए रो रहा था। टीवी वालों ने इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि हम तो वहां से भूखे प्यासे ही आए थे, यहाँ के सीएम साहब ने हमें भूखे रहने नहीं दे रहे। हमारी स्टेट के लोगों को भी यहाँ खाना दिया जा रहा है, 5 रुपए में पेट भर कर खाना हैदराबाद में। तो मेरे भाइयों से मैं यही गुजारिश करता हूँ, ये धोखेबाज दगाबाजों की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला हमें बहुत अच्छा, भगवान ने हमें बहुत अच्छा लीडर देने के बाद हमें दूसरे लीडर की क्या जरूरत है? हमारे हर इंसान चाहता है, लोग क्या चाहते हैं, एमएलए लोकल होना चाहिए। बाहर का कोई एमएलए है तो नॉन लोकल की बात करते हैं। उसी तरह हमें आंध्रा के कायदीन की क्या जरूरत है बताइए, हमें दिल्ली का कंट्रोल की क्या जरूरत है? वो जमाना चले गया जब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, बाहर के लोग अगर यहाँ हमले भी करें, हुकूमत भी करें, पर आज हमें अपनी हुकूमत चाहिए, हमारी हुकूमत चाहिए। और हमको खासतौर से निजामाबाद में हमारे गुप्ता भाई के लिए मैं आऊँ, और आज इंशाल्लाह हमारे भाइयों से भी मुखातिब करूंगा। मैं तमाम भाइयों से भी, सारे तेलंगाना के, मुझे यकीन है कि आज हमारे जो सीएम साहब का कह चुके हैं, जिस तरह हम बल्दिया में 99 सीट की बात जब केटीआर साहब ने कहा 100 सीट जीतेंगे मैडम, तो लोगों ने कहा हम कान काट लेंगे। क्या कहें? कान काट लेंगे। आज क्यों नहीं काटे कान? उसी तरह असम्बली में भी हमारे 100 से ज्यादा एमपीएलए रहेंगे, भारी मेजॉरिटी से जरूर जीतेंगे। 80 सीटों पर, चाहे वो कांग्रेस और तेलुगु देशम कोणता भी, वो बोलते हैं ना महाकुटुंबी, ये तो कचरा कुटुंबी है। महाकुटुंबी क्या कुटुंबी है? सब दुरई मिलके एक जगह मिलके कुटुंबी बना रहे। ऐसा हमारा कुटुंबी किसान कुटुंबी है, हमारा कुटुंबी मुसलमान कमेटी है, हमारा कुटुंबी SC ST BC कमेटी है। ये सब मिलकर हमारा कुटुंबी है। हमें नहीं चाहिए कचरा कमेटी, कुटुंबी कुछ भी। डेफिनेट तेलंगाना के अवाम इस मरतबा बुरी तरीके से उनको शिकस्त देकर हमारे बॉर्डर के बाहर कर देगी चंद्रबाबू नायडू को। मैं तमाम भाइयों से अपील करता हूँ, मीडिया भाइयों के जरिए, कि आपका वोट और कीमती वोट होता है। एक वोट एक बदल सकता है, किस्मत बदल सकता है। एक लम्हे की खता सदियों की सजा, बड़े बुजुर्गों ने कहा है। तो ये वोट वही है जो एक लम्हे में आप जब बटन दबाएंगे, और मुझे यकीन है आदमी अंदर जाने के बाद मैग्नेट की तरह कार खींचेगी हाथ को, क्योंकि सीएम साहब ने इतने स्कीम लाए, शायद हर कोई घर बचा हुआ नहीं है जो सीएम साहब नहीं पहुंच सके घर में, चाहे वो खुशहाल हो चाहे गरीब से गरीब हो, हर घर में सीएम साहब पहुंच चुके हैं। वो हाथ खुद ब खुद मशीन की तरफ जाते ही सीधा कार की तरफ जाएगा, मैग्नेटिक तरीके से, और कार कोई की बोल के दबाया जाएगा। तो मैं तमाम मेरे भाइयों को फिर एक बार अपील करता हूँ, जरा भी गफलत मच की है, उनकी जमानत भी नहीं बचना चाहिए, ताकि उनको अच्छी नसीहत हो सके, और ताकि यहाँ पर किसी पार्टी के इख्तियार की जरूरत नहीं। अवाम चाहती है तो TRS पार्टी को दिल से चाहती है, और सीएम साहब भी अवाम को अपनी औलाद की तरह प्यार करते हैं। इसलिए मैं तमाम मीडिया भाइयों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। अवाम से अपील करता हूँ, कार के निशान वोट लगाइए, और कार की तेज रफ्तार की तरह तरक्की करते हुए आप आगे बढ़े। थैंक यू। जय जय तेलंगाना। ఒక మాట చెప్తున్నారు రిజర్వేషన్ కోసం కరెక్ట్ ఉంది మీరు మంచి చెప్పారు విషయం मैं मीडिया में प्लीज एक बात कहता हूँ 1948 से लेकर తెలుగు చెప్తా 1948 తర్వాత 2004 तक కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది ఆయన 53 గా రూల్ చేశారు టోటల్ 56 ఇయర్ లో ఎప్పుడు ఒక్క టైం भी చెప్పలేదు ముస్లింలకు రిజర్వేషన్ ఇస్తామని ఏ లీడర్ చెప్పలేదు ఎంత తర్వాత 1948 లో 2004 56 ఇయర్ మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు 2001 లో టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఫామ్ చేశారు ఫాస్ట్ మేనిఫెస్టోలో పార్టీ మేనిఫెస్టోలో మైనారిటీలకు 12% రిజర్వేషన్ ఇస్తామని హామీ ఇచ్చే లీడర్ అంటే కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు 1 ఇయర్ లో పార్టీ ఫామ్ చేస్తే 1 ఇయర్ లో ఆయన 48 తో రూల్ చేశారు 48 से 2004
56 ఇయర్లో ఎప్పుడూ చెప్పలేదు ముస్లింకు రిజర్వేషన్ ఇస్తామని. 2004లో టీఆర్ఎస్ అలయన్స్ జరిగింది. అలయన్స్లో గులాం నబీ ఆజాద్ గారు సార్ ఇంటికి వచ్చారు, నేను అక్కడ ఉన్నాను. సీఎం గారితో అలయన్స్ అయింది, మా పార్టీతో అలయన్స్ అయింది. అలయన్స్లో 42 సీట్ ఇచ్చారు టీఆర్ఎస్కి. ఆ రోజు సీఎం సార్ ఒక మాట చెప్పారు, ఈ గులాం నబీ ఆజాద్ గారు ఉన్నారు, ఇన్ఛార్జ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ఛార్జ్. ఆయనతో రిక్వెస్ట్ చేశారు, మీరు ఫస్ట్ టైం ఒక ముస్లిం ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నారు, ఆయన ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, నా మేనిఫెస్టోలో 12% రిజర్వేషన్ ఇస్తామని నేను హామీ ఇచ్చారు. మీ ముస్లిం ఇక్కడ ఎంతముందు 65 ఇయర్స్ బిఫోర్ రూరల్ కమిటీ, ఇప్పుడు చాలా బ్యాక్వర్డ్ అయినా ఆయన కొంచెం రిజర్వేషన్ ఇస్తే బాగా అయితే, అబౌట్ 12% ఎక్కువ ఉంది. సార్ చెప్పినా మీరు మేడంతో మాట్లాడే, ఎంత ఇస్తే మంచి ఇచ్చాయి మీరు జోబీ ఏమి ఇస్తే అంటే. ఆ టైంలో మేడంతో మాట్లాడిన తర్వాత 5%కి హామీ ఇచ్చారు. 5% హామీ ఇచ్చే తర్వాత గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయింది. తర్వాత ఆయనకు లీగల్ ప్రాబ్లం అంటే 4% ఇచ్చారు. 4% అది అసెంబ్లీలో పాస్ చేయలేదు, కౌన్సిల్లో పాస్ చేయలేదు, గవర్నర్లో అప్రోచ్ తీసుకోపోలేదు, పార్లమెంట్లో పాస్ చేయలేదు. ఓన్లీ ఏం చేశారు, జియో జారీ చేశారు. అల్లావి దోకా చేశారు. జియో జారీ చేస్తే ఒక మంచి కోర్టుకు పోయినా, కోర్టులో ఇస్తే తీసుకొచ్చే రిజర్వేషన్ ఇస్తున్నారు. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఏం చేశారు, 12%కి సుధీర్ కమిటీ పెట్టారు. సుధీర్ కమిటీ తర్వాత అసెంబ్లీలో బిల్ పెట్టారు. గణేష్ గారు మాట్లాడిన బిల్ కోసం మంచి ఇవ్వండి సార్, ఇవ్వండి, తప్పకుండా ఇవ్వండి అంటే అందరూ మా ఎమ్మెల్యే. తర్వాత కౌన్సిల్లో పాస్ చేశారు. కౌన్సిల్ పాస్ చేసిన తర్వాత గవర్నర్ గారు అప్రూవల్కు పంపిన. అప్రూవల్ అయిన తర్వాత మోదీ సాబ్ దగ్గర తీసుకుపోయిన ప్రైమ్ మినిస్టర్లో బిల్ సబ్మిట్ చేసిన. సార్ ఇది పాస్ చేయి, మంచి అవుతుంది సార్, మీ పేరు మంచి అయితే అంటే మా పేరు మంచి అయితే తప్పకుండా అవుతుంది సార్. వాజ్పేయి సార్ ఏం చేశారు, పాస్పోర్ట్ ఫినిష్ చేశారు. ఈ రోజు తగ్గ ముస్లిం యాద్ చేస్తున్నారు ఆయన. మీరు ఒకసారి రిజర్వేషన్ ఇస్తే మా దగ్గర బీజేపీ తెలంగాణలో లేదు సార్. తెలంగాణలో బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఎక్కువ ఉంది. తమిళనాడులో బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ 84% ఉంది, మన దగ్గర 86% ఉంది. ఇవ్వండి సార్ అంటే ఆయన ఇవ్వలేదు. మంచి ఆ టైంలో నేను కేసీఆర్ గారు 2002లో రిజర్వేషన్ అన్న మేనిఫెస్టో పెట్టినప్పుడు మనకు ఐడియా లేదు. 14లో మా పవర్లో వచ్చేప్పుడు బీజేపీ ఎంత మెజార్టీతో పార్లమెంట్లో వస్తుంది. ఏం చేశారు మా కవిత మేడం ఎంపీ గారు 12 రోజు పార్లమెంట్లో ధర్నా చేశారు, పిల్లగాడిస్కో రిజర్వేషన్ ఇవ్వండి. కాంగ్రెస్ ఎక్కడ పోయింది? అప్పుడు ఒక్క పార్లమెంట్ మెంబర్ కాంగ్రెస్ వచ్చే సపోర్ట్ చేయలేదు. ఆయన చెప్తా ఎట్లా ఇస్తా, ఎట్లా తప్పకుండా ఇస్తా. మా సీఎం గారు ఏ మాట చేస్తే దేవుడు ఆశీర్వాదం ద్వారా తప్పకుండా ఇంప్లిమెంట్, అప్పుడు లాస్ట్ టైం చేయలేదు, నెక్స్ట్ టైం తప్పకుండా చేస్తా. సీఎం ఎట్లా సీరియస్ ఉన్నారు అట్లా సీరియస్ పని చేయలేదు. 4% రిజర్వేషన్ బి కారణం అంటే కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. ఆయన అప్పుడు రిక్వెస్ట్ చేశాను గులాం నబీ ఆజాద్కి, మీ ముస్లిం ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నారు, ముస్లిం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫస్ట్ టైం వచ్చినా మీరు, తర్వాత ఎవరు వస్తలేదు, ఈ టైం ఉంది మీరు ఇవ్వండి అంటే చెప్పిన మంచి కేసీఆర్ గారు. ఈ రిజర్వేషన్ కోసం ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి చాలా మాట్లాడతాం. ఆయన మీరు ఎందుకు పార్లమెంట్లో ఏమైనా బేహుష్ అయినా అప్పుడు ఎవరు పార్లమెంట్లో ఎవరు రాలేదు, ఎంపీ వచ్చినా మేడం ఎవరు కాంగ్రెస్ ఎవరు సపోర్ట్ రాలేదు. 12 రోజుల ప్రొటెస్ట్ చేశారు ముస్లింలకు రిజర్వేషన్ బిల్ పాస్ చేయాలంటే, ఎప్పుడు రాలేదు. అలాగే నేను మైనార్టీ ముస్లింలకు నేను చెప్తున్నాను, మా సీఎం గారు ఒకటి ఉన్నారు, మీ రిజర్వేషన్ కోసం హామీ ఇచ్చిన తప్పకుండా ఒక స్టేట్కు 68%, ఒక స్టేట్కు 50 లేదు. సీఎం ఏం డిమాండ్ పెడుతున్నారు, ఈ రిజర్వేషన్ పవర్ స్టేట్కు ఇస్తే బాగా అవుతుంది. ఈచ్ స్టేట్లో సపరేట్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ పర్సంటేజ్ ఉంది. తప్పకుండా ఫ్యూచర్లో మంచి స్ట్రాటజీ పెట్టే 100% ఈ 12% రిజర్వేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా. ఈ సీఎం ప్రామిస్ ఉంది, 100% ఫుల్ఫిల్ చేస్తా. తప్పకుండా పార్లమెంట్లో అంటే నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ ఎట్లా వస్తాయి అంటే ఆ టైంలో ఎవరు గెలుస్తారు, ఎవరికి ఎట్లా సహాయత ఇవ్వాలి, సెక్యులర్ పార్టీకి సహాయత ఇస్తా. 100% ఎట్లా ఉన్నాయి డెఫినెట్లా బిల్ పాస్ చేసిన అవకాశం ఉంది. ఉంది తప్పకుండా ఏ స్ట్రాటజీ పెట్టి బిల్ పాస్ చేస్తా. లేకుంటే రిజెక్ట్ చేస్తే మాకు సుప్రీంకోర్టు ఉంది, అది సుప్రీంకోర్టులో ఆర్డర్తో ఇస్తున్నారు. అక్కడ 68% తప్పకుండా ఈ టైంలో సుప్రీం ద్వారా 100% ఎట్లా అయితే అవకాశం అయితే అట్లా తప్పకుండా ఇస్తారు. థ్యాంక్ యూ మీడియా.